Becoming a mother is a beautiful and overwhelming thing. It is important for women to feel safe and secure while on this journey. Many mothers have had to go on the journey of motherhood during this coronavirus pandemic, and they have handled the situation quite gracefully. At MediCircle, we present to you the National Safe Motherhood Day Awareness Series, wherein we are featuring successful mompreneurs, healthcare professionals, obstetricians and gynecologists, entrepreneurs working on safe motherhood to raise awareness about adequate access to care during pregnancy, childbirth, and postnatal services. Hi, I'm Smita Kumar, your host, and today we have a renowned gynecologist for our Doctor's Talk series. Her name is Dr. Rishma Pai. So let's welcome Dr. Rishma Pai. She's an honorary consultant gynecologist at the Leelavati, Jaslok, and Hinduja Healthcare Hospital, Mumbai, and also at Every Women Clinic. She is the only Indian selected to be on board of the International Federation of Fertility Societies, IFFS, an organization of infertility specialists from over 68 countries as the assistant treasurer. She is the first Indian to have been appointed as the board member of the World Endometric Society. She is the vice president of MOGS, the Mumbai Obstetric and Gynecological Society. She has received the Inspiring Gynecologist of Western India Award by the Times of India Group in 2019 and has been awarded with many more such prestigious awards. So hello and welcome to MediCircle, Dr. Rishma Pai. Thank you. Thank you for having me here. I always believe I love to talk to people, patients. मुझे बहुत पसंद है कि पेशेंट्स के साथ इंटरैक्शन करूं हर समय और ये एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसके द्वारा हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं क्योंकि कोविड टाइम से तो यही एक रास्ता रह गया है लोगों से बात करने के लिए. तो जस्ट वन स्मॉल करेक्शन, मैं अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट हूँ मुंबई ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी की और प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी जो फॉक्सी बोलते हैं उसकी, और IVF काउंसिल ऑफ इंडिया की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, एंडोस्कोपी सोसाइटी की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ. तो बहुत काम किया है डॉक्टर्स के साथ, पेशेंट्स के साथ बहुत सालों से. तो यही मेरी पैशन है रियली. So we are privileged to have us with you, Dr. Rishma Pai, because you being there in so many organizations, I think you have closely watched how healthcare is changing, how things are, the disruption is brought by the digital technologies. But close to here, we would be discussing कि हम लोग कैसे safe motherhood ensure कर सकते हैं और कैसे MMR rate को हम लोग decrease कर सकते हैं और काफी ऐसे जो कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया में सेफ प्रेगनेंसीज नहीं हो रही है उनके बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं. सो beginning with the first question, the 6 pillars of safe motherhood include family planning, antenatal care, obstetric care, postnatal care, post-abortal care, and control of STI, HIV, and AIDS. In your view, how we can ensure safe motherhood? सेफ मदरहुड के काफी सारे आयाम हैं. फैमिली प्लानिंग एक है, एंटीनेटल केयर है, साथ ही साथ पोस्ट नेटल केयर है और पोस्ट अबॉर्टल केयर है. और बहुत बार लोगों जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन्हें STI और HIV और एड्स का इन्फेक्शन होने का खतरा होता है. तो इन सब के बीच हम कैसे एक सेफ मदरहुड जर्नी इंश्योर कर सकते हैं? बहुत अच्छे तरीके से आपने ये 6 पिलर्स बताए और हर एक जो फेज है, हर एक जो पार्ट है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है. अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन है फैमिली प्लानिंग से शुरू करो तो अगर लोग फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस करें, अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, वो समय पे प्रेगनेंसी ना हो और जब उन्हें चाहिए तभी प्रेगनेंसी हो, इतनी एक सिंपल चीज करेंगे तो लाखों लाइव्स हम लोग बचा सकते हैं. क्योंकि अबॉर्शन में, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में बहुत सी लाइव्स रिस्क पे हो जाती हैं. तो फैमिली प्लानिंग डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये बात कहूंगी कि लोग सब ध्यान देना शुरू करते हैं जब भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, पर मेरी एक बहुत बड़ी एडवाइस है आप सबसे कि आप ट्रीटमेंट या प्लानिंग या डॉक्टर से मिलने का जो काम है वो प्रेगनेंसी के पहले करिए. इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी मदर बने तो यंग एज से, टीनेज ईयर से
अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखो, खून की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, अच्छा खाना खाओ, आयरन की गोली खाओ, कैल्शियम खाओ, अपना वेट जो है, वजन जो है कंट्रोल में रखो, सिंपल चेकअप्स करो। सो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर हर एक कपल शादी के पहले या शादी के तुरंत बाद आके डॉक्टर से मिले, उनके गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और एडवाइस ले। ऐसा नहीं कि हमें कुछ चाहिए, जस्ट हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप हमें बताइए हमें कैसे प्लान करना चाहिए, हमको 1 साल बच्चा नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, या हमें अभी प्रेगनेंसी चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ टेस्ट करना है क्या। तो एक सिंपल एक विजिट अगर आप करेंगे तो उसमें हम आपका सिंपल खून टेस्ट कर लेंगे, हीमोग्लोबिन देख लेंगे, शुगर है कि नहीं, डायबिटीज, थायराइड का टेस्ट हो जाएगा, थैलीसीमिया जैसी बड़ी बीमारी अगर सिंपल ब्लड टेस्ट से हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। मगर अगर नहीं किया और आपको और आपके हस्बैंड को लाइट या हल्का जो माइनर थैलीसीमिया होता है, तो आपका बच्चे को सीरियस थैलीसीमिया हो सकता है, जो कि उसके जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। सो सिंपल चीजें हम लोग सिंपल ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं कि बाबा कोई बड़ी गांठ है क्या, फाइब्रॉइड है क्या, बीमारी एंडोमेट्रियोसिस जैसी है क्या। सो सिंपल चीजों से हम लोग आपका एक हेल्थ का चेकअप कर सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं, देख सकते हैं कि चलो आपको बहुत टाइम है, आप प्रेगनेंसी 2 साल बाद करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं रूटीन टेस्ट में कि अरे बाप रे, आपका तो अंडा खत्म होने को आया, आपकी उम्र खाली 28 है, मगर आपकी उम्र अंडा का ओवरीज या AMH या जो हम ओवरीज का टेस्टिंग करते हैं उसे ऐसा लगता है आपकी एज 40 के पास है, क्योंकि बायोलॉजिकल जो एज है वो अलग होती है आपकी उम्र से। तो हम लोग आपको काफी इंफॉर्मेशन एडवाइस दे सकते हैं। सो एक मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप प्लानिंग के पहले डॉक्टर से मिलिए। एंड ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में तो शुरुआत से आजकल आज तक भी लोग मानते हैं कि 7वें महीने में नाम डालना चाहिए। वो पूरी तरह से गलत बात है। मैं तो बोलती हूँ कि 7 दिन के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको मालूम पड़ा कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल चीज है जैसे कि फोलिक एसिड की गोली, अगर आप शुरुआत से वो लेंगे तो अबनॉर्मल बच्चे होने का चांस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक एक चीज जो हम लोग आपको एडवाइस कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी एडवाइस लीजिएगा, रेगुलर चेकअप्स करिए। आजकल तो ऐसा भी हमने देख लिया कोविड टाइम में कि आपको डॉक्टर के पास जाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं लगती है, फोन पे ही बहुत टेलीफोन कंसल्टेशंस हो सकती हैं। तो बीच बीच में टेलीफोन कंसल्टेशंस कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। एंड बेसिकली अगर सिंपल चीजें, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, बेसिक ब्लड टेस्ट अच्छे हैं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपका वेट ठीक ठाक है, तो आप काफी हेल्दी प्रेगनेंसी में से गुजर सकते हैं। रेगुलर चेकअप करो। एंड इंपॉर्टेंट चीज है कि एक टाइम डिलीवरी हो जाती है ना, तो लोग डिसअपेयर हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बच्चे के टाइम पे उनसे मिलते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो पोस्ट पार्टम पोस्ट नेटल फेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आपकी बॉडी रिकवर हो रही है, आपको वाइटामिन जो है, आपके आयरन कैल्शियम, आपको पूरा जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं आपको कंटिन्यू रखने चाहिए। तो ऐसा भी काफी एडवाइस रहता है। कभी आपको एक्सरसाइज करनी शुरू करनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन बच्चे के बाद में आपको नहीं चाहिए 1-2 साल, तो क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए प्लानिंग के लिए। तो वो सब एडवाइस बाद में दी जाती है डिलीवरी के बाद, तो उसके बाद में भी आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जहां तक के STI मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का सवाल है, हम लोग बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं आजकल। HIV लकीली थोड़ा सा कम हो गया है, मगर हर्पीज बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वजाइनल इन्फेक्शन, सफेद पानी जाता है, डिस्चार्ज है, अल्सर्स होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, ये काफी ज्यादा कॉमन हो गया आजकल, स्पेशली यंग जनरेशन में, क्योंकि बहुत से टाइम आजकल हम देखते हैं कि एक से ज्यादा पार्टनर रहता है कपल्स में। सो काफी ज्यादा इन्फेक्शंस हो गई हैं, दीज आल्सो इमीडिएटली डायग्नोज या ट्रीट हम लोग करेंगे, या इन्फेक्शंस कैसा नहीं होने चाहिए उसके बारे में एडवाइस करेंगे, तो बहुत फर्क पड़ सकता है जनरल हेल्थ का, लेडीज की हेल्थ का। बिल्कुल। और डॉक्टर रिश्मा, इंडिया में करीब 1 साल में 30 मिलियन जो विमेन है वो एक्सपीरियंस करती है प्रेगनेंसी या गर्भवती होती हैं। उनमें से जो 26 मिलियन विमेन है वो एक लाइव बर्थ यानी एक जीते जागते बच्चे को जन्म देती हैं, जिसमें करीब 45,000 डेथ्स भी हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इंडिया ऑन एन ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा मेटर्निटी मॉर्टेलिटी बर्डन को लेकर के। तो आपके हिसाब से क्या मेन कारण है इस मेटर्नल मॉर्टेलिटी रेट के, जिसमें जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी का वो जो पूरा सफर है 9 महीने का वो पूरा नहीं कर पाती और उसके पहले ही दम तोड़ देती हैं। और इन कारणों की वजह से जो ये हो रहा है इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? नो, एक
जैसा मैंने पहले भी कहा, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से पहले ही अगर हम लोग थोड़ा अपने बॉडी का ध्यान रखें, थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखें। एक सिंपल चीज जैसे कि हीमोग्लोबिन, फ्री में भी आदत सब जगह में आजकल टेस्ट हो सकता है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कर ले। सबसे बड़ा कारण इंडिया में आजकल भी डेथ लेडीज की हो रही है इस सिंपल कारण के लिए कि उनकी खून में कमी थी। ये तो बहुत बुरी बुरी बात है कि इतनी आसान चीज है, सादा आयरन का गोली खा लेते, एक इंजेक्शन लगवा लेते आयरन का, उनकी तबीयत अच्छी हो जाती। तो पहले से ही अगर आपकी कंडीशन खराब है, प्रेगनेंसी में और हीमोग्लोबिन या खून की कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को भी बहुत खून की वो जरूरत होती है, हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। तो अगर आपका पहले से कम है हीमोग्लोबिन, प्रेगनेंसी में और कम हो जाएगा, आप ध्यान नहीं रखेंगे। और डिलीवरी में तो ब्लीडिंग होता ही है, हर एक पेशेंट को 500,000 ml का ब्लीडिंग होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन होता है तो वो भी बॉडी सहन नहीं कर सकती है अगर आपको पहले से ही कमजोरी है। पहले से सिंपल चीजें अगर हम लोग कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन अच्छा रखो, ब्लड प्रेशर पर नजर रखो, डायबिटीज पर नजर रखो, क्योंकि बहुत सी इंडियन लेडीज को यंग एज में डायबिटीज हो जाता है, शक्कर बढ़ जाता है। तो अगर ये सब चीजें आप शुरुआत में ही रखेंगे तो फिर आगे जाके प्रेगनेंसी बहुत रिस्की हो जाएगी आपकी। तो शुरुआत अच्छी करो, फिर प्रेगनेंसी में रेगुलर सप्लीमेंट्स लो, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन अगर हो सकता है तो डाइट अच्छा लो, अगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते अच्छा खाना खाओ, रेगुलर चेकअप्स करो। अगर हम लोग हर एक विजिट पे आपके ब्लड प्रेशर देखते हैं, शुगर आपकी चेक करते हैं सॉरी, यूरिन चेक करते हैं, आपका वजन देखते हैं, क्योंकि अगर बहुत सडनली बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया, मतलब कि पाँव में सूजन आ गया है, बॉडी पे सूजन आ गया है, तो ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। और बहुत से पेशेंट बोलते हैं अरे हमें तो कुछ नहीं, हमारी तो तबीयत एकदम ठीक है, मगर प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से शुगर बढ़ सकती है, थायराइड का प्रॉब्लम प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें चेक करती रहनी चाहिए। और सबसे ज्यादा कारण जो प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में मदर्स की डेथ हो जाती है वो है हैवी ब्लीडिंग, हेमरेज, और पहले से जैसे मैंने बोला खून कम होने से थोड़ा भी ब्लीडिंग होगा तो वो बहुत रिस्की हो सकता है। ब्लड प्रेशर होना, हाई ब्लड प्रेशर, जिससे आकड़ी आ सकती है प्रेगनेंसी में, कन्वल्जन्स आ सकती हैं, और बच्चा और दोनों माँ और बच्चे दोनों को बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्फेक्शन, अगर अच्छी क्लीन जगह में डिलीवरी नहीं हुई, डिलीवरी के समय पे इन्फेक्शन हो गई, सेप्सिस हो गया, तो वो भी एक बड़ा कारण है मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए या मदर की जान जाने के लिए। अगर एक चीज तो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए, एंड दैट इज हॉस्पिटल डिलीवरी। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि कोई छोटी जगह में चलो, घर के पास में है। बहुत पेशेंट बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो घर के बाजू में ही चली जाऊंगी। ठीक है, अगर बहुत अच्छा हॉस्पिटल घर के पास में है ठीक है, मगर वो छोटे छोटे कारणों के लिए आपको, ऐसा नहीं कि आपको 10 मिनट ट्रैवल नहीं करना मगर उसकी वजह से आपकी लाइफ को रिस्क है। सो अच्छा सेटअप, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा नर्सिंग होम में जाना जहाँ पे आपको सेफ डिलीवरी हो सकती है। अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो इमीडिएट आपको बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखना बहुत पहले से जरूरी है। लास्ट में फिर टाइम नहीं लगता है, अगर डिलीवरी के समय पे ब्लीडिंग शुरू हो गया तो शायद 15-20 मिनट, आधे घंटे में ही पेशेंट की जान भी जा सकती है, टाइम नहीं रहता है वो समय पे। तो इसलिए पहले से हर एक चीज की तैयारी ऐसे रखनी चाहिए कि कुछ भी हो तो हम लोग तैयार हैं उसको टैकल करने के लिए। इसी तरीके से ही जो रिस्क ऑफ मदर्स डाइंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ है वो कम हो सकता है। एक और सवाल यह है कि बहुत सारे विमेन जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे होते हैं उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी या नॉलेज नहीं होती है, तो ऐसे क्या कॉमन एलिमेंट्स है या क्या कॉमन परेशानियां हैं जो बहुत मतलब ज्यादा हद तक देखी जाती हैं और जिनसे प्रेग्नेंट वुमेन्स को डील करना होता है और जिनके बारे में उन्हें बिल्कुल पता होना चाहिए? मैं तो बोलूंगी कि हर एक पेशेंट को अपनी बॉडी के बारे में और उसके बॉडी में क्या चेंजेस हो रही हैं या होंगी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ही खुद के बारे में मालूम नहीं है या जानकारी नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, या अगर आपको नहीं मालूम है तो आप फाइंड आउट नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ही को नुकसान होने वाला है। तो आई वुड से सबसे कॉमनेस्ट चीज तो शुरुआत में, स्पेशली पहले 3 महीने में, वॉमिटिंग, नौशिया, और पेशेंट्स को इतना मालूम नहीं होता है इसलिए एकदम टेंशन में चले जाते हैं। दिन में 2 बार उल्टी होगा तो फोन आ जाएगा, डॉक्टर 2 बार उल्टी हो गया, मेरे बॉडी में कुछ नहीं रह रहा है, मेरे को क्या होगा, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा पेट में, ऐसा होता है।
वी हैव टू टेल देम कि ये तो नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में थोड़ा वॉमिटिंग, नॉशिया, एसिडिटी, रिफ्लक्स जो होता है, सब खाने से ऊपर आता है ऐसा लगता है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब बहुत कॉमन है। और हम लोग पहले से ही बोलते हैं कि चलो ये तो होने वाला है। हम लोग कभी मानेंगे कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, समझो दिन में 15-20 टाइम वॉमिटिंग हो रही है, तो हम कंसिडरिंग करेंगे उसको कि ये हाइपरेमेसिस है। हाइपरेमेसिस मतलब बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग, पेशेंट के बॉडी में कुछ नहीं रह रहा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो फिर हम लोगों को उसको मे बी आईवी ग्लूकोज लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मली सिंपल मेडिसिन भी आती हैं जो कि लाइक विटामिन टाइप की दवाइयां हैं जिससे वॉमिटिंग कम हो सकती है। थोड़ा डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, स्पाइसी ऑयली फूड अवॉइड कर सकते हैं। एक तरीका है कि सुबह उठ के कैसे धीरे धीरे आप खाना शुरू करना चाहिए। तो एक थोड़ा गाइडेंस अगर आप आपके डॉक्टर से लेंगे तो ये हर रोज की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, वॉमिटिंग का, कॉन्स्टिपेशन का, ये वो हर रोज की प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग इजीली सेटल कर सकते हैं। अनदर कॉमन प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं पाइल्स, हेमरॉइड जो होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसा बच्चा बड़ा होता है बहुत ज्यादा वजन पड़ता है पेट से और नीचे की जगह में। और अगर किसी को पहले से पाइल्स का प्रॉब्लम है तो वो काफी बढ़ जाता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है मोशन पास करते समय, और स्पेशली क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ जाती है तो काफी कॉमन हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। बैक एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जिसको भी पूछो, जिस पेशेंट को पूछो बैक एक तो होता ही है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा हम लोग ट्रेनिंग उसके बारे में दे सकते हैं, या फिजियोथेरेपी के द्वारा वो लोग थोड़ी बैक स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। बैक स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करो। हर एक पेशेंट प्रेग्नेंट होने के बाद बोलता है डॉक्टर कैन आई स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। तो मैं पूछती हूँ कि आप लोग हर समय पहले भी एक्सरसाइज करते थे? नहीं, जिंदगी में पहले कभी एक्सरसाइज नहीं किया, पर अभी प्रेग्नेंट हो गई, अभी मुझे एक्सरसाइज करना शुरू करना। दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड, सडनली वो लोग एकदम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। तो अगर आप ऑल योर लाइफ आपने एक्सरसाइज किया है तो जरूर करिए, प्रेगनेंसी में भी करिए। बट पहली बार प्रेगनेंसी में अभी आप सडनली कुछ हैवी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड, एंड माय सजेशन इज कि बेसिकली पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइजेस करना चाहिए, बैक का स्ट्रेंथन करने के लिए, बैक को स्ट्रांग करने के लिए एक्सरसाइजेस करना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, दैट्स ऑलवेज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, एंड few stretches, so that is suitable for every patient in pregnancy. Definitely. Moving on to some warning signs which these pregnant women expect sometimes. So उन्हें बहुत सारे ऐसे कभी कभी ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको वो नजरअंदाज कर जाती हैं या नेग्लेक्ट करती हैं, एंड दे डोंट रिपोर्ट इट टू द गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन कभी कभी ये बहुत फेटल हो जाता है, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो ऐसे क्या वार्निंग साइंस होने चाहिए जो हमें बिल्कुल ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करने चाहिए और बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं करने चाहिए? Yes. No, it's important. जैसे मैंने बोला कि आपको खुद की बॉडी में क्या हो रहा है उसकी तो जानकारी होनी ही चाहिए, एंड यू मस्ट नो ये जो वार्निंग साइंस क्या है, कि कभी आपको इमीडिएटली डॉक्टर को फोन करना चाहिए या डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। तो जैसे हमने बोला, शुरुआत से शुरू करते हैं कि अगर वॉमिटिंग से 10 या 15 टाइम से ज्यादा हो रही है दिन में, देन डेफिनेटली यू नीड टू इन्फॉर्म योर डॉक्टर, क्योंकि फिर हम लोग उसके बारे में डेफिनेटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग होती है पहली फर्स्ट 3 मंथ्स में, फॉर एग्जांपल थोड़ा भी अगर दाग दिखता है, रेड ब्लड आता है या डार्क ब्राउन जैसा डिस्चार्ज होता है, दैट इज डेफिनेटली अ वार्निंग साइन, क्योंकि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी अगर ब्लीडिंग जाता है कोई भी टाइम प्रेगनेंसी के थ्रू, वो इमीडिएटली एक वार्निंग साइन है, चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी कुछ सीरियस नहीं होता है, खाली एक हम बोलेंगे उसको थ्रेटन्ड अबॉर्शन हो सकती है, मगर तो भी हम लोग चेक कर सकते हैं, सोनोग्राफी देख सकते हैं बच्चा ठीक ठाक है अंदर के नहीं। क्योंकि जब तक के लिए बच्चे का मूवमेंट नहीं लगता है, बच्चा जो हिलने लगता है, हमें पेशेंट को खाली 5 महीने के बाद मालूम पड़ता है। तो 5 महीने तक पेशेंट को भी मालूम नहीं है कि बच्चा अंदर ठीक है कि नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई भी ब्लीडिंग होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, या ऐसा लगता है कि एकदम ही पेट दिखाई नहीं दे रहा है, 5 महीने हो गए मालूम नहीं पड़ रहा है, तो वो सब रेगुलर चेकअप्स पे हम मालूम कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज जा रहा है, पानी जैसा जा रहा है, सो कभी कभी थोड़ा चिकट डिस्चार्ज हो सकता है, म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, मगर एकदम पानी जैसे जाने लग पड़ा, जैसे कपड़े भीग जाते हैं, दैट इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। या फिर पानी जा रहा है जिससे आपको नीचे की जगह में इचिंग हो रही है, या आपको खाज हो रही है, या
रेड रैश हो रहा है, वो सब चेकअप करना जरूरी है। यूरिन में बर्निंग शुरू हो गया, अगर आप बाथरूम जाते हैं और जलन होती है यूरिन में, सो दैट इज अगेन अ साइन ऑफ यूरिन इन्फेक्शन। काफी कॉमन है प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन, और उसकी ट्रीटमेंट डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी रिस्क हो सकता है। देन लाइक आई सेड, 5वें महीने के बाद हम लोग को नॉर्मली बच्चा का जो मूवमेंट है वो मालूम पड़ने शुरू हो जाता है कि चलो बच्चा घूम रहा है। तो एक टाइम बच्चा घूमना शुरू हो जाएगा, तो आपको नजर रखनी चाहिए कि कितना टाइम दिन में बच्चा घूम रहा है। अगर सडनली एक दिन ऐसा लगे कि कोई भी, मुझे सुबह से बच्चे घूमने का मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तो अगर जो रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट जो हम लोग बोलते हैं, बच्चे का घूमने का कम हो जाना, वो भी एक वार्निंग साइन है। डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इमीडिएटली हम लोग चेक कर सकते हैं कि बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं। ब्लड प्रेशर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे, आप मुझे पूछोगे सबसे डेंजरस चीज प्रेगनेंसी में क्या है, तो वो है हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आपको पाँव में सूजन ज्यादा आ रहा है, पाँव में सूजन हर एक पेशेंट को आती है, मगर अगर ज्यादा आ रहा है, फिंगर्स में सूजन आ रहा है, आपकी रिंग्स टाइट हो रही है, रिंग्स फिट नहीं आ रही है, मतलब हाथ में सूजन आ गया, फेस पे सूजन आ गया, ये सब एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, और ये एक हाई ब्लड प्रेशर का सॉर्ट ऑफ वार्निंग हो सकती है। तो वो आप चेक कर लेना चाहिए। और मैं तो बोलूंगी कि हर एक पेशेंट को घर में ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट रख लेना चाहिए। उसमें क्या है, आप रेगुलरली ब्लड करते रह सकते हैं। सो अगेन, बैक एक, स्टमक एक अगर ज्यादा है, पेट टाइट हो रहा है, कड़क हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, अगेन इट कुड बी लेबर। पेशेंट्स को लगता है कि अभी तो डिलीवरी तो 9 महीने के बाद ही होगी, लेबर जो पेन 9 महीने में ही होगा, बट कभी कभी 6वें महीने में, 5वें महीने में भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। तो कुछ भी ऐसी चीज होगी तो डू नॉट नेग्लेक्ट इट, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। So thank you so much, Dr. Rishma, for sharing such significant information with our viewers today. We definitely hope through these initiatives, MediCircle is trying to make a difference. And see, what we discuss, it's actually always there. But जब भी हम लोग किसी डॉक्टर से ये बातों को दोहराते हुए सुनते हैं, तो हमें हमारे सबकॉन्शियस में आ जाता है कि अरे हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज आज के मीन्स जनरेशन में एवरीबडी इज फॉलोइंग गूगल एंड बट Google can never be your doctor. So anytime if you are experiencing any issue, any problem, don't Google. You must go to your doctor. Like in such a case, जैसे हम लोग safe motherhood की बात कर रहे हैं, तो you must be experiencing, अगर आपको कोई भी symptom ऐसे लग रहे हैं जो आपको लग रहे हैं कि unusual है, you must speak to your gynecologist and don't hesitate to call. अभी तो सारे वीडियो कंसल्टेशंस के थ्रू डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को काफी मदद कर रहे हैं, खासकर वो गर्भवती महिलाएं जो कोविड के दौरान प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि उनमें ऐसे ही बहुत सारा स्ट्रेस है. So how to deal with stress? There are a lot of things which the doctors can actually help you and benefit, and from where you can benefit, and the baby and the mother would be definitely hale and hearty. Like in India, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, करीब 15% पूरे जो वर्ल्ड में जितने भी डेथ्स हो रहे हैं मेटर्नल के, उसमें इंडिया करीब 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग फिगर है इंडिया के लिए. और हमारा ये जो पहल है, हम ये पहल से यही आशा करेंगे कि जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने, अगर वो प्रेग्नेंट है तो काइंडली अपनी प्रेगनेंसी को सीरियसली ले, टॉक टू योर डॉक्टर इफ देयर इज एनी इशू एंड प्लान. द बेस्ट थिंग डॉक्टर रिश्मा जिन्होंने स्टार्टिंग में ही हमें बताया कि काइंडली आप अपने प्रेगनेंसी को प्लान करें. प्रेग्नेंट होने के बाद डॉक्टर के पास सब जा रहे हैं, but before that whether you want to have a child, at what age you want to have a child, that's really important. And meet the gynecologist. And the best thing she told कि after the pregnancy the couple only comes for the second child, or whenever they are expecting the second child. That's really hilarious, but that's the truth. और डॉक्टर रेशमा, आप इसके बारे में जरूर एडवाइस करने चाहेंगी पेरेंट्स को और कपल्स को कि उन्हें हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट के कनेक्ट में रहना चाहिए. Absolutely. And I agree that now there's a lot of information available online. But, I feel Google, अगर आप कर रहे हैं, तो जो आप देखना चाहें, वही आपको दिखता है. Because Google में 100 different opinions हैं. So if I want to see a particular thing, मुझे वही दिखाई देता है. But it is not a balanced opinion. A balanced opinion for you especially, only a doctor can give you. So आपका हर एक situation देख के, आपकी condition देख के advice only a doctor can give you. No Google can give you, because they cannot judge you or assess you as an individual. And I'd like to make one last point, and that is, हम लोग pregnancy और delivery की बात कर रहे हैं, but मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल बहुत सी ladies
प्रेगनेंसी और डिलीवरी पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग बिजी हैं जॉब में, प्रोफेशन में, कोविड टाइम में, ऐसा एक एक करके डिले होती जाती है लाइफ में। और आजकल हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स बहुत लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। सो अगेन माय एडवाइस टू यू इज कि वो तो आपकी चॉइस है कि आपको कभी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, मगर हम लोग के पास में बहुत सिंपल टेस्ट हैं जो कि हम लोग आपका सिंपल ब्लड टेस्ट से या सोनोग्राफी से असेस कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम है प्रेगनेंसी के लिए, आप कितना डिले कर सकते हैं। और अगर डिले नहीं कर सकते हैं तो आपका एग्स निकाल के हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। तो आजकल तो वेरी इजिली हम लोग रूटीनली, इनफैक्ट हम लोग वी वर द फर्स्ट पीपल टू ब्रिंग एग फ्रीजिंग टू इंडिया। और कितने सालों से हम लोग एग्स फ्रीज करते आ रहे हैं। पहले तो खाली एक्ट्रेसेस और फिल्म स्टार्स और मॉडल्स एग फ्रीज करते थे, पर अभी तो हर एक मिडिल क्लास कपल्स भी आ रहे हैं या मिडिल क्लास गर्ल्स भी आ रही हैं एग फ्रीजिंग करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हस्बैंड नहीं मिलता है टाइम पे, शादी लेट हो जाती है किसी कारण से, या प्रेगनेंसी नहीं कर सकते हो किसी कारण से। सो एग फ्रीजिंग इज अ रियल पॉसिबिलिटी। तो ये सब चीजें हमारे पास है, टेक्निक्स बहुत है, टेक्नोलॉजीज बहुत है, आप लोगों को खाली एडवाइस के लिए आना चाहिए। इसीलिए मैं ऑल द टाइम कहती हूँ, और एक अगर लास्ट एडवाइस ये देना चाहूंगी आपसे कि आप डॉक्टर के पास जाने के लिए हेजिटेट मत करिए। आपका डॉक्टर अच्छी तरह से चुनिए, आपका डॉक्टर अपडेट होना चाहिए, उनको सब इंफॉर्मेशन लेटेस्ट मालूम होनी चाहिए, और आपको आपके पास इतना टाइम स्पेंड करना चाहिए डॉक्टर को कि आपके जो सब क्वेश्चंस हैं, आपके सब डाउट्स हैं, वो आपके डॉक्टर सॉल्व करना चाहिए आपके लिए। और खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, आपको एडवाइस भी देनी चाहिए कि ठीक है अभी तो ये है, आगे जाके आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड। सो आई कॉल इट रिप्रोडक्टिव प्लानिंग। पहले से यंग एज से आप सोच के रखो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और उसकी तरफ तुम प्लानिंग करो, तो आई थिंक यू कैन अचीव वेरी गुड रिजल्ट्स। Definitely. So Dr. Rishma, I would like to ask you about कि बहुत सारे जो यंग कपल्स हैं वो अपने एग्स को फ्रीज कर रहे होते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये जो एग फ्रीजिंग है ये कितना सेफ है, और साथ ही साथ कितना रिलायबल है, और सबसे इम्पोर्टेंटली कितना सक्सेसफुल है? Because you being a pioneer in egg freezing in India, so you can better help us with this query. Yes. I very strongly believe in this, and that is why मैं इसके बारे में काफी ज्यादा बात करती हूँ एग फ्रीजिंग के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको किसी चीज की जानकारी ही नहीं है तो आप उसका फायदा कैसा ले सकते हैं। मगर अगर आपको कुछ डिस्कशन में कहीं से आपने पढ़ा है, सुना है, एटलीस्ट आप पूछताछ कर सकते हैं उसके बारे में कि हाँ मुझे इसकी जरूरत लगेगी कि नहीं, मुझे इससे फायदा हो सकता है कि नहीं। तो एग फ्रीजिंग जो है एक आजकल स्टैंडर्ड टेक्निक हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग कम से कम 10 साल से ज्यादा हो गए होंगे जब भी हम लोग जापान से ये टेक्निक लेके आए थे पहली बार इंडिया में, और अभी तो और काफी लोग कर रहे हैं। एग फ्रीजिंग स्टैंडर्ड टेक्निक हो गया है अभी। इसमें आजकल हम देखते हैं कि लेडीज जो हैं काफी लेट शादी करती हैं, क्योंकि शायद करियर में बिजी हैं, और वो प्रायोरिटी नहीं है कि हमें खाली शादी करके हाउसवाइफ बन के बच्चों को बड़ा करना है, उनको खुद भी कुछ लाइफ में बनना है। तो एक वो कारण हो सकता है। दूसरा कभी कभी के किसी भी कारण से शादी डिले हो सकती है, परफेक्ट आपको पर्सन मिला नहीं है, या किसी कारण से रिलेशनशिप बनी नहीं और आगे जाके टूट गई और इसकी वजह से डिले हो गया। तो जो भी कारण है, या बहुत से मैरिड कपल्स भी ऐसे हैं जो कि स्पेशली मुंबई जैसे शहर में घर लेना है, घर नहीं है अपना खुद का, इनकम कम है, या जो भी कारण है, तो डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी। और आजकल कैसा है कि हमारे पास बहुत सिंपल टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, हम लोग देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में एग्स कितने हैं, अंदाज से कितने एग्स हैं। अगर आपके एग्स काफी अच्छे हैं तो ठीक है, आप 1-2 साल और डिले कर लो। मगर एक और चीज हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, और वो ये है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मतलब टाइम के पहले जो अंडे जो है ओवरीज के अंदर खराब हो रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। तो नॉर्मली हम सोचेंगे कि ठीक है 35-36 साल तक तो आराम से आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, बट बहुत हम लोग आजकल देखते हैं कि लड़की 20s में, 25 साल की लड़की, 28 साल की लड़की, उसका जो एज है 28 है, मगर उसकी ओवरीज है, उसका अंडा जो है अंदर बॉडी में 35-40 की उम्र के हिसाब से इतना कम हो गया है। सो किसी कारण से ये हो रहा है हमें मालूम नहीं, मगर बहुत हम लोग प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर देख रहे हैं।
तो अगर ऐसा हम लोग पिकअप कर लेते हैं तो हम पहले से ही एग्स जो है ओवरी में से निकाल सकते हैं। ये टेक्निक को शुरुआत से लेकर आखिर तक आप बोलो तो अंदाज से 15 दिन से कम लगते हैं। तो हम लोग नॉर्मली पीरियड से शुरू करते हैं, इंजेक्शंस देते हैं ताकि एग्स ज्यादा बने, क्योंकि एक एक अंडा निकाल के फायदा नहीं है, थोड़ा ज्यादा एग्स हम लोग चाहते हैं कि अंडा ज्यादा हमारे पास हो। तो हम लोग इंजेक्शंस देते हैं लेडीज को और काफी ज्यादा एग्स तैयार करते हैं। और फिर जिस दिन अंडा निकालना होता है बस वही आधा दिन के लिए या 4 घंटे के लिए हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो पूरे टाइम पे एडमिशन की जरूरत नहीं रहती है, एडमिट करते हैं सुबह में समझो, और सोनोग्राफी के द्वारा एग्स निकाले जाते हैं। तो ऐसा बोलो कि कोई कट्स है, स्टिचेस है, बड़े बड़ा ऑपरेशन ऐसा कुछ नहीं है। सोनोग्राफी से नीडल से एस्पिरेट वो किया जाता है एग्स, और जैसा ही एग्स निकलता है हम लोग लैब में रख के उनको फ्रीजिंग करते हैं। तो एक नया टेक्निक विट्रिफिकेशन करके आया है जिससे आजकल एग्स बहुत अच्छे से फ्रीज हो जाते हैं। मैंने किसी चीज की गारंटी कोई भी दे सकता नहीं है, मगर हम बोले कि अगर पेशेंट के पास काफी एग्स हैं तो प्रेगनेंसी आगे जाके जब भी वो चाहेंगे हम लोग वो एग्स निकाल सकते हैं, उनको थॉ कर सकते हैं, हस्बैंड के साथ सीमेन के साथ उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं और पेशेंट के अंदर डाल सकते हैं। तो हमारे पास पेशेंट्स आए हैं जो कि 10 साल पहले हमारे पास एग्स फ्रीजिंग है और आज उनको एग्स वो निकाल के फर्टिलाइज करके उनके अंदर डाले और उनकी डिलीवरी हो गई है। तो काफी ऐसे पेशेंट हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं जो इसके बारे में खुल्लम खुल्ला बात भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई छुपी हुई चीज है, काफी हमारे पेशेंट्स भी खुल्लम खुल्ला इसके बारे में बात करते हैं। तो अच्छे टाइम पे अगर आप एग्स की फ्रीजिंग कर लिया, बराबर टाइम पे फ्रीजिंग कर लिया, तो आगे जाके आपको इतना टेंशन है कि ओ माय गॉड अभी मैं 35 इयर्स की हो गई हूँ, 40 इयर्स की हो गई हूँ, मेरे को प्रेगनेंसी नहीं है, होगी कि नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले से अगर थोड़ा प्लानिंग करके करेंगे, और आजकल तो आपको मालूम है गूगल में, गूगल की बात चल रही थी, गूगल, फेसबुक, अमेरिका में तो दे आर giving money to their employees to actually go and freeze their eggs. Facebook is giving money to its employees कि आपको जब भी प्रेगनेंसी चाहिए तभी आप करिए। खाली प्रेशर की वजह से कि अभी मैं 35 इयर्स की हो गई, अभी नहीं प्रेगनेंसी करूंगी तो होएगी नहीं आगे जाके, उसके कारण से नहीं प्रेगनेंसी करनी चाहिए। प्लानिंग करके जब भी आपको चाहिए वो हिसाब से करनी चाहिए। एंड स्पेशली दिस इज नॉट ओनली सोशल फ्रीजिंग, इट इज ऑल्सो फॉर फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन। आजकल हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग लड़कियों को भी कैंसर्स हो रही है, ब्रेस्ट कैंसर। यू विल सी इवन 20, आई हैव अ पेशेंट 26 ईयर ओल्ड, ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा होता है आजकल, गांठ निकला सडनली और कैंसर निकल गया, कहीं पे भी बॉडी में ब्लड कैंसर, दीज आर कॉमन नाउडेज। और अगर ऐसा है तो फिर तुरंत, बिकॉज एक टाइम आपने उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट ले ली, कीमोथेरेपी ले लिया, रेडिएशन ले लिया, तो ओवरीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो अगर ऐसा कभी हुआ गलती से किसी की, आपकी फैमिली में किसी को, तो उनको एडवाइस करिए कि तुरंत एग फ्रीजिंग कर ले या ओवरी फ्रीजिंग कर ले, ताकि एटलीस्ट आगे जाके उनको कोई चांस है कि उनको खुद का अपना बच्चा, जेनेटिकली अपना बच्चा हो सकता है। क्योंकि एक टाइम कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट ले लिया कैंसर का, फिर आगे जाके प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है यूजुअली। सो बहुत से कारण हैं, जैसे मैंने बोला, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड सीकिंग द राइट एडवाइस। तो वो आप जरूर करिएगा। So thank you so much, Dr. Reshma, and we were like privileged to have you here on this show of a safe motherhood. Thanks once again.